everyone, welcome to my channel. In the previous lecture, we'll discuss about PPC, properties of PPC, about opportunity cost and marginal cost. But in this lecture, we'll start the next chapter, that is chapter number 3, Consumer Equilibrium Utility Analysis and of class 11, Microeconomics. This is lecture number 8. In this lecture, you will learn about who is consumer, the meaning of utility, what are the two approaches of utility, types of utility, and the relationship between total utility and marginal utility. So let's start with the topic. First, we talk about consumer. Who are consumer? Before proceed to the topic, I want to tell you that in this lecture, we totally talk about consumer और a rational consumer because ये पूरा chapter आपका consumer basis पे है. So consumer होते कौन है? Who is consumer? Consumer is one who buys goods and services for satisfaction of wants. Consumer यहाँ पर वो person हुए, वो लोग हुए जो कोई भी commodity को purchase करते हैं. क्यों purchase करते हैं? अपनी wants को fulfill करने के लिए, उसको satisfy करने के लिए, to satisfy of wants. So वो consumer कहलाएंगे यहाँ पर. Okay, because he takes decisions with regards to the kind of goods and services to be purchased in order to satisfy the wants. And the main objective is to get maximum satisfaction from spending his whole income on various goods and services. Okay, so here a consumer can be of two types. He can be a direct consumer or an indirect consumer. How it can be direct or indirect? Let's take an example. Suppose I am a consumer and I purchase a particular commodity, but that commodity I gave to other as a gift. So then after I will be a consumer, but I am an indirect consumer because here I gave the gift to give that commodity to other as a gift. So मैंने कहीं ना कहीं अपनी needs को fulfill किया है, अपनी wants को satisfy किया है उसको gift देकर, तो मैं कौन सी consumer कहलाऊंगी? Indirect consumer कहलाऊंगी. तो consumer यहाँ पे कितने तरह के हो गए? एक तो direct जो कोई भी commodity purchase करता है अपनी wants को satisfy करने के लिए, consume कर रहा है उसको. दूसरा होता है indirect. तो यहाँ पर in economics we talk about two types of consumer, direct consumer and indirect consumer. Okay students? Okay. The main aim of this lecture is to make you understand how a consumer maximizes his satisfaction from consumption of various goods and services. So let me talk about some basic technological terms like utility. सबसे पहले हम बात करते हैं utility क्या होती है? What is utility? In simple terms, we can say that utility is a one satisfying power of a commodity. मतलब कोई भी commodity को purchase करने के बाद अगर consumer को कुछ satisfaction मिलता है तो उस satisfaction को utility कहा जाता है economics में. But इसको हम थोड़ा सा technical terms में analysis करते हैं. देखिए, utility is the satisfaction expected or derived from the consumption of commodity. यहाँ पर हम दो वर्ड्स की बात करेंगे अगर एक्सपेक्टेड और डिराइव. ये दो वर्ड्स क्या है? इन दिस डेफिनेशन एक्सपेक्टेड और डिराइव का मतलब क्या हुआ? सपोज मैं एक 5 स्टार होटल में खाना खाने जा रही हूँ, मेरे को वहाँ पे फास्ट फूड खाना है और मैंने पिज्जा ऑर्डर किया. ओके, और उस पिज्जा की प्राइस है 1000 रुपीज, जो ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट में आपको 300-400 रुपीज में मिल जाता है. बट आई ऑर्डर दैट पिज्जा दैट इज ऑफ 1000 रुपीज to get expected satisfaction की उसको खाने के बाद, उसको कंज्यूम करने के बाद मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कितने तक का मिलेगा? 1000 रुपीज तक का मिलेगा. तो यहाँ पर मैंने क्या सोचा? मेरी वो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है. अभी तक मैंने उसको खाया नहीं, अभी मैंने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर देने के बाद साथ साथ में मैंने उसकी पेमेंट कर दी 1000 रुपीज. मैंने उसको टेस्ट तो नहीं किया, बट मेरे मन में एक थिंकिंग आ गई कि उसको जब मैं खाऊंगी तो मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा? 1000 रुपीज का. एंड नाउ द ऑर्डर कम, मैंने उसको टेस्ट किया और खाने के बाद मेरा रिएक्शन था कि इससे अच्छा तो मेरा 300 रुपए वाला पिज्जा ज्यादा बेटर था. अब
क्या क्या इस चीज को क्या कहेंगे हम? दिस इज कॉल्ड डिराइव्ड सेटिस्फेक्शन, बिकॉज यहाँ पर जब आपने उसको टेस्ट किया तो आपको उसकी एक्चुअल पोजीशन पता चली कि वो 1000 रुपीज का सेटिस्फेक्शन आपको नहीं दे रहा, वो 300 रुपए का ही सेटिस्फेक्शन आपको दे रहा है, तो ये हो गया डिराइव्ड सेटिस्फेक्शन। तो स्टूडेंट्स, यूटिलिटी इज ऑफ टू टाइप्स, expected or derived. When you are thinking about it, that will be expected satisfaction, and when you got actually, it is called derived satisfaction. So let we read the definition. It is the satisfaction expected or derived for the consumption of a commodity. अब क्लियर हुआ कि कमोडिटी को कंजप्शन करने के बाद जो आपको क्या कैसी सेटिस्फेक्शन मिली है, एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन मिली है या डिराइव्ड सेटिस्फेक्शन मिली है, उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको यूटिलिटी कहते हैं। ओके, एंड यूटिलिटी कैन बी ऑफ utility may be differ from person to person, place to place और time to time. Clear this? तो utility हर पर्सन की अपनी अलग हो सकती है। मेरी यूटिलिटी, मेरा सेटिस्फेक्शन डिफरेंट होगा आपके सेटिस्फेक्शन से। ये टाइम टू टाइम भी डिफरेंट हो सकती है, प्लेस टू प्लेस भी डिफरेंट हो सकती है। अब नेक्स्ट, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। यहाँ पर ये जो वर्ड है यूटिल्स, यूटिल्स क्या है स्टूडेंट्स? यूटिल्स इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। जब आप यूटिलिटी को मेजर करते हो, जिस यूनिट में आप मेजर करते हो उसको आप कहोगे यूटिल्स। जैसे आप अपनी हाइट मेजर करते हो, व्हेन वी मेजर हाइट वी टेक अ यूनिट्स लाइक इंचेस, सेंटीमीटर और फीट एंड सो ऑन। अगर आप किसी कमोडिटी की वेट मेजर कर रहे हो, वो सॉलिड में है तो ग्राम और केजी में करते हैं, और अगर वो लिक्विड में है तो लीटर मिलीलीटर में करते हैं। सेम एज when we measure the satisfaction, when we measure the utility, the unit we can take is called utils. उसको हम क्या कहते हैं? utils कहते हैं। तो utils यहाँ पर एक मेजरमेंट, यूटिलिटी को मेजर करने की एक यूनिट है, नथिंग है। हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज आई ईट अ चॉकलेट एंड बाय ईटिंग दैट चॉकलेट आई गेट अ सेटिस्फेक्शन ऑफ 40 यूटिल्स। मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिला? 40 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। अगेन आई ईट अ सेम चॉकलेट और उसको खाने से मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिला? 20 यूटिल्स। तो यूटिल्स कुछ नहीं है, यूटिल्स इज द जस्ट अ मेजरिंग यूनिट ऑफ यूटिलिटी, इज दैट। ओके, नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, वी ऑलरेडी डिस्कस थिंग्स कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है और हमारे पास वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड है। So a consumer has to follow some basic principles or laws to order to attain the highest satisfaction level. And for this or to prove this, we have two approaches. One is cardinal utility approach, another is ordinal utility approach. जिसको हम two approaches of utility कहते हैं. Okay, students. In this chapter, chapter number 3, we are going to discuss a detail of cardinal utility approach. But in chapter number 4, we'll discuss about ordinal utility approach. But आपको इसका basic knowledge होनी चाहिए, basic पता होना चाहिए कि what do you mean by cardinal utility approach and what do you mean by ordinal utility approach. Let's see. Cardinal utility approach. It is given by Marshall. ये जो अप्रोच है ये मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। ओके, सेकेंड, इट मीन्स दैट द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन एग्जैक्ट नंबर, दैट इज 1 2 3 4। अभी हमने देखा कि हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वो अप्रोच होता है जिसमें हम यूटिलिटी को यूटिल्स में और नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। Let's take an example. Suppose I eat one chapati and by eating that chapati I get a satisfaction or utility of 100 utils. Another one, again I eat a second chapati and then I get a satisfaction or utility of 80 utils. तो ये क्या है? This is cardinal utility approach. यहाँ पर आप मेजर कर पा रहे हो यूटिलिटी को नंबर्स में। जब आप नंबर्स में मेजर कर पाते हो यूटिलिटी को, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द यूटिलिटीज ऑफ एनी टू कमोडिटीज कैन बी नोन इन नंबर्स। दोनों ही आपने देखा कि फर्स्ट चपाती को खाने पे 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला,
सेकेंड चपाती को खाने में 80 यूटिल्स का सैटिस्फैक्शन मिला। दोनों के डिफरेंस भी तो किस में आ रहे हैं, नंबर्स में आ रहे हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर नंबर 3. देन वी टॉक अबाउट ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. अब ऑर्डिनल का मतलब ये होता है रैंकिंग, रैंक होता है। तो यहाँ पर हम कोई भी कमोडिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, हम उसको कंपेयर करते हैं। दो कमोडिटीज या तीन कमोडिटीज को आपस में कंपैरिजन करने को ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं. लेट्स डिस्कस. इट इज गिवन बाय हिग्स. ये किसने दी थी, हिग्स ने दी थी. It means that the utility of a commodity cannot be expressed or measured in exact number. आप यहाँ पर यूटिलिटीज को एग्जैक्ट नंबर में मेजर नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसी यूनिट नहीं है जिसमें हम इसको मेजर कर सकें. The difference between the utilities of any two commodities can be compared as being more or less, but that the difference cannot be quantified. आप इस डिफरेंस को क्वांटिफाई नहीं कर सकते. इसको भी एग्जांपल से समझते हैं. सपोज मैंने कल एक चॉकलेट खाई और उस चॉकलेट को खाने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 80 यूटिल्स का, या 80 यूटिल्स की बात नहीं करते, यहाँ पे यूटिल्स नहीं होता. चॉकलेट खाने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिला. ओके, आज मैंने एक और चॉकलेट खाई और मुझे उससे भी सेटिस्फेक्शन मिला. बट अगर मैंने दोनों ही चॉकलेट को कंपेयर करी, आज वाली और कल वाली, तो क्या फील किया कि कल वाली जो चॉकलेट मैंने कंज्यूम करी दैट इज मोर डिलीशियस, वो ज्यादा अच्छी थी. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे. तो इस अप्रोच को हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. सो वी हैव डिस्कस कंज्यूमर कौन होते हैं, यूटिलिटी क्या होती है, व्हाट आर द टू अप्रोचेस ऑफ यूटिलिटी. So without wasting time, we will discuss the next topic, that is very important topic, types of utilities. We have already discussed the meaning of utility. Now we talk about the term types of utility. Utility are of three types. They are marginal utility, total utility and additional utility. Now we talk one by one. First we talk about marginal utility. जैसे कि मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल. तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जब कंज्यूमर किसी भी चीज की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता है और उससे मिलने वाली जो ड्राइव यूटिलिटी है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे. सो लेट वी रीड द डेफिनेशन. इट इज द एडिशनल यूटिलिटी derived from the consumption of one or more units of given commodity. Additional utility जो उसको derive हो रही है एक या एक से ज्यादा commodity कंज्यूम करने से, उसको हम क्या कहते हैं, marginal utility कहते हैं. So it is the utility derived from the last unit of a commodity purchase. That's it. So what is the formula? क्या formula होगा, क्योंकि अब हम आगे इसको न्यूमेरिकल्स करेंगे. हम तीनों के बारे में समझने के बाद हम न्यूमेरिकल पे आएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. बट उसको समझने के लिए, न्यूमेरिकल को करने के लिए वी नीड द फॉर्मूलास. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी? लेट्स सी. फॉर्मूला, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TU n minus TU n minus 1. Here the term n means number of a commodity. n minus 1 मतलब द सेकेंड वन. सेकेंड कमोडिटी जो है उसकी जो यूनिट है उसमें से फर्स्ट यूनिट को, सेकेंड जो यूनिट है टोटल यूटिलिटी की, उसमें से फर्स्ट टोटल यूनिट की कमोडिटी को जब माइनस करती हैं तो क्या मिलता है हमें, मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है. इसको हम ये कह सकते हैं डिफरेंस इन टोटल यूटिलिटी. इसको हम डिफरेंस इन टोटल यूटिलिटी भी कह सकते हैं. Another formula is that marginal utility equals to delta TU upon delta Q. What is this? Delta TU means change in total utility, and delta Q means change in output. जब आप टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आ रहा है और यूनिट्स में जो चेंज आ रहा है उसको आपस में डिवाइड करेंगे, यू गेट मार्जिनल यूटिलिटी. तो ये तीन फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखे मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए. पहला
TUn-TUn-1 जनरली हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बट इसको हम डिफरेंस इन TU भी कहते हैं, और डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q से भी आप मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव कर सकते हो। हम न्यूमेरिकल बाद में समझेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द टर्म्स टोटल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। नाउ द सेकंड टर्म इज टोटल यूटिलिटी। क्या होता है टोटल यूटिलिटी? एक कंज्यूमर किसी भी चीज को लगातार कंज्यूम कर रहा है, और तो हर अगले यूनिट से को अगर हम उस पहले यूनिट से जोड़ दें तो उससे हम क्या मिलेगा, हमें टोटल यूटिलिटी मिलेगा। सिंपल से टर्म्स में इट रेफर्स टू टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जितने भी कमोडिटी है आपके पास है, आप उन सबको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल यूटिलिटी। So being a rational consumer, when you consume all the units of a commodity, so you get the total satisfaction, and that total satisfaction is called total utility. Is that clear? So इसके भी formulas होते हैं. Let me see the formula first. Formula TU is equal to sum of marginal utility. TU हम marginal utility से निकाल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब होता है सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड फॉर्मूला इज, अगर आपके पास AU गिवन है, TU इक्वल्स टू AU इंटू Q। अब ये AU क्या है, एवरेज यूटिलिटी, एंड Q मीन्स द आउटपुट। अगर आपके पास क्वेश्चन में एवरेज यूटिलिटी दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल यूटिलिटी, देन यू विल use this formula TU equals to AU into Q. So we have two formulas, TU equals to sum of summation of marginal utility and AU into Q, that means average utility into output. So this is total utility. जब आप किसी भी चीज को लगातार कंज्यूम कर रहे हो और हर अगले यूनिट को हम पहले वाले यूनिट से जोड़ देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। Now we talk about the last, that is average utility. एवरेज का मतलब ही आपको पता है कि औसत, एवरेज ऑन हम निकालते हैं, है ना। सो जब कंज्यूमर किसी यूनिट को कंज्यूम करता है और उसे एवरेज हर यूनिट पे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उसको हम एवरेज यूटिलिटी कहते हैं। एवरेज हर यूनिट पे, वन कमोडिटी पे कितनी उसको यूटिलिटी मिल रही है, सेकेंड पे कितनी मिल रही है, हम एवरेज की बात कर रहे हैं। ओके, सो इट रेफर्स टू यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ कंजप्शन। हर यूनिट को कंजप्शन करने के बाद उसको एवरेज कितनी यूटिलिटी मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एवरेज यूटिलिटी। ओके, तो इसका भी फॉर्मूला हो गया, इसको हम TU से निकाल सकते हैं। एवरेज यूटिलिटी इक्वल्स टू TU अपॉन Q। सो व्हाट इज TU? TU इज टोटल यूटिलिटी एंड Q इज आउटपुट। जब आप टोटल यूटिलिटी को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज यूटिलिटी। So these are the three types of utility. First is marginal utility, second is total utility, and third is average utility. जिसके हमने formulas देख लिए. Now we discuss the numerical by the help of schedule and diagram. Now the concept of TU and MU can be better understood from the following schedule and diagram. First we look at the schedule. These are the outputs, or we can say that units. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here we talk about the chocolate consumption. So ये 0 unit of chocolate, उसने कुछ नहीं खाई, 1 unit of chocolate, 1 chocolate, second chocolate, third, fourth, fifth, sixth. कितना उसने chocolate का consumption किया, that shows output. Now second is total utility. What is total utility? As we discussed already, that total utility is the satisfaction derived or obtained from all the possible combination of units of a commodity. That means आपका जीरो चॉकलेट जब आपने कंजप्शन करी तो टोटल यूटिलिटी 0 रही। फर्स्ट चॉकलेट आपने खाई तो कितनी टोटल यूटिलिटी मिली, 20 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन ही गेट। ओके, एज आई ईट सेकेंड चॉकलेट आई गेट 36 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब इस 36 यूटिल्स के अंदर फर्स्ट यूनिट की सेटिस्फेक्शन इंक्लूडेड है। हमने ये बात करी थी, टोटल यूटिलिटी इसी को कहते हैं। थर्ड चॉकलेट जब ईट करी तो 46 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब इसमें थर्ड यूनिट में सेकेंड यूनिट का सेटिस्फेक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फोर्थ सेम एज फोर्थ चॉकलेट जब खाई 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, बट आपकी कैपेसिटी फोर्थ यूनिट तक की थी, फोर्थ चॉकलेट तक खाने की ही थी,
दैट मीन्स एज यू ईट वन मोर चॉकलेट, 5 चॉकलेट आपने और खाई तो क्या हो गया, सेम 50-50। अब आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं थी खाने की, आपका पेट भर चुका था, तो यू गेट द सेम सेटिस्फेक्शन दैट इज 50 यूटिल्स। एंड इफ यू ईट वन मोर चॉकलेट, 6 और आपने कंजप्शन करा, तो यू गेट लेस सेटिस्फेक्शन देन प्रीवियसली, 50 से 44 हो गया क्योंकि आपकी इच्छा नहीं थी, जो सेटिस्फेक्शन आपको था उससे भी आपको कम सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये आपका था टोटल यूटिलिटी। Okay, now we talk about the marginal utility. What is marginal utility? As we already discussed, this marginal utility is the difference of TU. Total utility के difference को कहते हैं, और अगर आप फॉर्मूले को याद करो तो TUN minus TUN minus 1। तो देखो 0 यूनिट पे क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये डैश होगा, फर्स्ट यूनिट पे सेम रहेगा 20 बिकॉज दिस इज TUN एंड दिस इज TUN minus 1, 20 minus 0 20। सेकेंड यूनिट पे, सेकेंड चॉकलेट पे 36 minus 20, TUN minus TUN minus 1, 36 minus 20 60। थर्ड यूनिट पे 46 minus 36 10। फोर्थ पे 50 minus 46 4। फिफ्थ पे 50 minus 50 जीरो सेटिस्फेक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब उसकी इच्छा नहीं थी, उसको सेटिस्फेक्शन क्या मिला, जीरो। एंड लास्ट 6 यूनिट पे 44 minus 50 उसको सेटिस्फेक्शन और कम मिला, दैट मीन्स माइनस में मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिल रही है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 20 कैसा आया, लाइक दिस। ओके, 36 minus 20 16, 46 minus 36 10, 50 minus 46 4, 50 minus 50 0, एंड क्या कुछ नहीं है, 44 minus 50 minus 6। इज क्लियर? एवरेज यूटिलिटी की बात अगर हम करें तो एवरेज यूटिलिटी क्या होती है, देखिए एज वी टॉक दैट पर यूनिट पे उसको एवरेज ऑन कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सो देखिए 0 यूनिट पे क्योंकि टोटल यूटिलिटी है नहीं, और आप फॉर्मूला याद करो क्या था, TU अपॉन Q, टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी। 0 को 0 से डिवाइड किया डैश, 20 डिवाइड बाय 1 20, 36 डिवाइड बाय 2 18, 46 डिवाइड बाय 3 15.3, 50 डिवाइड बाय 4 12.5, 50 डिवाइड बाय 5 10 एंड 44 डिवाइड बाय 6 7.3। तो ये हमने सारा TU, NU और AU न्यूमेरिकल के हिसाब से कर लिया। Now we discuss this with diagram. Okay, this is the diagram of total utility and marginal utility. In this diagram, units of chocolates are shown along the x-axis, and total utility of chocolate and marginal utility of chocolate shown along the y-axis and y-dash axis. Okay, now we talk about that as mu is positive or mu is decreasing, TU increases. जैसे जैसे mu क्या हो रहा है, mu पॉजिटिव है, TU क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कौन से पॉइंट तक आप देखोगे, टिल 4th यूनिट तक mu is increases, but TU is increases and mu is positive. Okay, when after consumption of 4th unit, 5th unit जैसे उसने कंजप्शन किया, क्या देख रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आफ्टर द कंजप्शन ऑफ 5th unit what happened, mu is 0। 5th unit पे mu क्या हो गया, 0, whereas TU is maximum। सबसे ज्यादा पॉइंट है मैक्सिमम में, आप यहाँ देखो 5th यूनिट पे TU is 50 मैक्सिमम, ओके, बट 4th यूनिट पे इट इज 50 बट mu is 4, ये पॉजिटिव था। ओके, TU is maximum, so this point is called point of satiety, or we can say that point of maximum satisfaction. This point is better for a consumer for consumption of any commodity. Afterwards, if he consumed the commodity, what happened? Look at, अब उसने 6 यूनिट का कंजप्शन और किया तो क्या हो रहा है, आप देखिए mu नेगेटिव में चला गया, इट्स -6, mu इज नेगेटिव एंड TU स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। TU क्या होने लग गया, डिमिनिश होने लग गया, डिक्लाइन होने लग गया। ओके, सो ये आपने डायग्रामेटिकली इसको समझना। दिस इज द डायग्राम कि जब mu पॉजिटिव होता है TU इंक्रीज हो रहा है, जब mu 0 है तब TU मैक्सिमम है, और जब mu नेगेटिव होता है आफ्टर मोर कंजप्शन तो क्या हो गया, mu नेगेटिव हो गया, TU स्टार्ट्स डिक्लाइन। नाउ वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड mu, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट रिलेशन,
TU increases so long as MU is positive. इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमने डिस्कस किया वही चीज है. When MU decreases, then TU will increase. अभी MU डिक्रीज हो रहा है, TU इंक्रीज हो रहा है. इस पॉइंट को हम पॉजिटिव MU भी कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे हमारा MU क्या है? पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं हुआ. तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव MU. In this phase, TU increases, but at which rate? Diminishing rate. TU इंक्रीज तो हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है. स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना, जब भी हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सी रेट से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो आप हमेशा मार्जिनल को देखो. अब आप देखो TU इंक्रीज तो हो रहा है 20 से 36, 36 से 46, 46 से 50 लाइक दिस, बट उसके रेट क्या है? पहले 20 था, फिर 16, फिर 10, फिर 4, फिर 0, फिर -6, मतलब डिक्रीज. तो यहाँ पर TU इंक्रीज हो रहा है कौन सी रेट से? डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है. व्हाई? बिकॉज ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिमिनिश. जैसे जैसे आप एक यूनिट एडिशनल ले रहा है, उसकी जो डिमिनिशिंग रेट है वो और कम होती जा रही है. ओके, नाउ द सेकंड रिलेशन, व्हेन MU इज 0, TU इज मैक्सिमम. जब MU 0 था, MU 0 है, तब TU क्या है? मैक्सिमम. एज वी ऑलरेडी डिस्कस, इसको हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी कहते हैं. दैट मीन्स अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. एंड इसको हम 0 MU भी कहेंगे, क्योंकि इस स्टेज पे MU की पोजीशन क्या है? 0 है. दिस इज 0 MU ऑल्सो. सो हियर TU कर्व स्टॉप राइजिंग एट दिस स्टेज. यहाँ पर TU अब राइजिंग होना बंद कर देगा, स्टॉप राइजिंग एट दिस स्टेज. नाउ द थर्ड रिलेशन एंड द लास्ट रिलेशन, व्हेन MU इज नेगेटिव, TU स्टार्ट्स डिमिनिशिंग. आप देखेंगे जब MU नेगेटिव चला गया, यहाँ देखो MU नेगेटिव पे है, तो TU भी क्या हो गया? फॉल, डिमिनिश हो रहा है, 50 से 44 पे आ गया. ओके, तो व्हेन MU इज नेगेटिव, TU स्टार्ट्स डिमिनिशिंग. तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड नेगेटिव MU. इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव MU. बिकॉज व्हेन कंजप्शन इज इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटाइटी, इस पॉइंट से ज्यादा और कंजप्शन अगर हम करते हैं, देन TU स्टार्ट्स फॉलिंग as MU becomes negative. TU falling होना शुरू हो जाएगा क्योंकि MU नेगेटिव पे जा चुका है. So these are the relationship between TU and MU. First, TU increases so long as MU is positive. इस पॉइंट को हम पॉजिटिव MU भी कहते हैं. When MU is 0, TU is maximum. इसको हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी कहते हैं और 0 MU भी कहते हैं. When MU is negative, TU start diminishing. इस पॉइंट को हम नेगेटिव MU भी कहते हैं. ओके, सो हमने ये रिलेशनशिप पढ़ लिया. होप सो आपको आज के लेक्चर के सारे कंसेप्ट, सारे सब टॉपिक समझ में आए होंगे. इस लेक्चर में हमने कंज्यूमर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा. हु इज कंज्यूमर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, एंड व्हाट आर द टू अप्रोचेस ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. ये पूरा जो चैप्टर है आपका, दैट इज बेस्ड ऑन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. आपने देखा हमने यहाँ पर यूनिट्स को, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी को किसमें मेजर किया है? यूटिल्स में. और ये कंसेप्ट मैंने आपको कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में बताया था. तो कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का हमने कंसेप्ट समझ लिया. Then we talk about the types of utility. There are 3 types of utility: total utility, marginal utility, average utility, and we understand this with the help of schedule and diagram. And last we discuss the relationship between TU and MU. आपको ये लेक्चर अगर समझ में आता है, please don't forget to like my channel, subscribe it also, so that you get time to time notification. Thanks for watching.